Okay, Ji. The new chapter is permutation and combination. This is worksheet 4A, introduction of this topic. Okay, so we will start this topic by discussing something called basic counting principle. When there are m ways to do one thing and n ways to do another thing, then there are m times n ways of doing both of them together. For example, we throw a coin. How many outcomes are possible? Two. So there are two ways of throwing a coin. And then we throw another coin. How many outcomes are there in the second throw? Two outcomes. So together, if you throw two coins, there are two into two, four outcomes. एक हो जाएगा tail, tail, head, 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 tail, and tail head. So two ways of two ways of doing the first event, two ways of doing the second event. So combined, there are four ways of doing them together. Okay, this is called basic counting principle. ये टू इवेंट्स पे भी अप्लाई होता है, थ्री इवेंट्स पे भी अप्लाई होता है, फोर इवेंट्स पे भी अप्लाई होता है. Okay. Salam. Okay. So keeping the basic counting principle in mind, a coin is flipped three times. A coin is flipped three times. How many outcomes are possible? 8. 2 into 2 into 2. First outcome में head या tail, second outcome में head या tail, third outcome में भी head या tail. ठीक है? So 2 into 2 into 2, 8 ways of flipping a coin three times or flipping three coins. ठीक है? इसके आउटकम्स अगर हमने देखने हैं तो वी हैव हेड 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 and the last outcome would be tail tail tail, and in between we will have 6 other outcomes. ये यहाँ लिखे हुए हैं. Let me copy them. So all together you will have 8 outcomes. You have 3 shirts and 4 pants. How many outfit combinations are possible? Use the basic counting principle. कितनी होंगी? 12. ठीक है? शर्ट की 3 choices हैं, पैंट्स की 4 choices हैं, तो ऑल टुगेदर यू हैव 12 वे ऑफ पेयरिंग देम टुगेदर. चलिए वही चीज है बार बार. लेट्स डू दिस. You are buying a new car. There are 2 body styles, sedan and hatchback. There are 5 colors available: black, red, green, dark blue, or light blue. There are 3 models: GL, SS, and SL. How many total choices are available? Sorry? अब मुझे आवाज नहीं आई. क्या बोला? Use the basic counting principle. First में 2 ऑप्शंस है, सेकंड में 5 ऑप्शंस है, थर्ड में 3 ऑप्शंस है. तो क्या हो गया आंसर? 30. ठीक है? टोटल 30 चॉइसेस हैं गाड़ियों के. कैन चूज वन आउट ऑफ दोस 30. Now we're going to discuss something called factorial. Factorial क्या होता है? 5 factorial means, anybody already know what this is? हाँ, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay. 3 factorial, 3 into 2 into 1, 8 factorial, 8 into 7 into 6, whatever this value is. There's a factorial key in the calculator. उसको press करना होता है and you directly get the answer.
ये मोड के नीचे होती है फैक्टोरियल की, शिफ्ट दबा के आती है. Okay. और what about 1 factorial? 1. And 0 factorial is also 1. ठीक है, आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, इसका कोई प्रूफ वगैरह सिलेबस में नहीं है. 0 factorial is also 1. ठीक है. Okay. Okay. Now we'll talk about arrangements. Number of ways of arranging n distinct items in a line is 3 factorial, n factorial, sorry. How many number of ways can the letters A, B, C be arranged in a line? First slot में कितने letters आ सकते हैं? 3, ठीक है. So it's going to be 3. Now 1 letter has been placed here. इधर कितने आ सकते हैं? 2. और end में 1. So total arrangements possible are 6. ये basic counting principle की theory पे ही होता है. Okay, so A, B, C can be arranged in 6 ways. और इसको ऐसे भी लिखते हैं 3 factorial. Because it's 3 times 2 times 1. Here are all the outcomes. A, B, C, A, C, B, B, A, C, and all of these. So 3 into 2 into 1, there are total 6 ways of arranging it. How many ways can Sara, Ali, Haris, Daud, and Bina sit on 5 chairs in a row? Again, first chair पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ये क्या हो गया? 5 factorial. So there are 5 factorial ways of arranging 5 people in a row. ठीक है. This was the definition of arrangements. उसमें लिखा हुआ था n items n factorial ways में arrange हो सकते हैं. ठीक है. Okay, now we're officially starting the topic of permutations. Permutations arrangement ही होती है और इसमें order matter करता है. A B एक arrangement है और B A एक अलग arrangement है. ठीक है. So permutations are arrangements, ways of number of ways of arranging something and the order matters. कॉम्बिनेशन में ऑर्डर नहीं मैटर करता, परमिटेशंस में ऑर्डर मैटर करता है. Okay. Number of ways of arranging R items chosen from N items are called permutations. अभी हम इसके examples करेंगे तो ये definition खुद ही समझ आ जाती है. What you need to know is NPR is N factorial over N minus R factorial. Again, this formula is given in the formula sheet. और आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में परमिटेशन की यूज करते. बताती हूँ. ठीक है. परमिटेशंस के लिए हम P की यूज करेंगे. इट्स देयर इन द कैलकुलेटर. विल टॉक अबाउट इट इन अ सेकंड. फर्स्ट एग्जाम्पल, अरेंज 3 स्टूडेंट्स ऑन 3 चेयर्स. कैसे होगा?
3 फैक्टोरियल या 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर हम बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल यूज करें 6 हो गया, ठीक है। या हम डायरेक्ट करेंगे 3 फैक्टोरियल, वो भी 6 हो गया, या हम करेंगे परम्यूटेशन यूज करके 3 स्टूडेंट्स 3 चेयर्स, 3p3, ठीक है। कैलकुलेटर में करो 3p3, you will see this symbol in your calculator. They are all equals to 6. You can use any one approach. समझ तीनों आनी चाहिए. 3p3 means 3 students, 3 chairs. ये n होता है, ये r होता है. ऊपर वाला n होता है, नीचे वाला r होता है. अभी ये जब चेंज होगा तो it will make more sense. Okay. 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 Number of ways of arranging 3 letters chosen from 8 letters. Okay. Now this will be, if we use basic counting principle, 3 letters choose हो रहे हैं out of 8. तो इसमें कितनी options हैं? 8. इन 8 में से कोई एक चूज होगा, ठीक है। उन 8 में से कोई 3 चूज करने हैं, तो इसमें 8 आ सकते हैं, नेक्स्ट में 7 और नेक्स्ट में 6, ठीक है। एक ये तरीका है करने का, if we're using basic counting principles, which gives 336. Permutations यूज करेंगे तो it will be 8p3. 3 out of 8 are being arranged. ठीक है, so it will give the same answer. Please check 8 shift p3. It also gives 336. ठीक है, so अगर इन 8 में से हम 3 को अरेंज करते हैं तो 336 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है. एक अरेंजमेंट की अगर मैं एग्जांपल लिखूं, EFG एक अरेंजमेंट है, ठीक है, और एक और अगर लिखूं तो GFE एक और अरेंजमेंट है, क्योंकि अरेंजमेंट्स और परम्यूटेशन में सीक्वेंस मैटर करती है, ठीक है. सो इस तरह की टोटल 336 अरेंजमेंट्स पॉसिबल. Number of ways 4 students out of 5 can sit on 4 available seats in a row. 5 students हैं, लेकिन 4 choose होने, arrange होने. So this would be 5 into 4 into 3 into 2, और permutation के form में क्या लिखेंगे? 5p4. Both of these should give the same answer. 120 and 5p4 is also 120. Number of ways of arranging 3 students on 5 available seats. Okay. ये क्या होगा?
sorry, 5 into 4 into 3. There are only 3. अच्छा ये उल्टा लिख दिया. 5 number of ways of arranging 5 students on 3 available seats होना चाहिए था. So it's going to be 5 into 4 into 3 or 5p 3. Okay, so we get 60 in both the cases. Okay, now we're going to talk about combinations. Combinations होती है selections, तो फिर order नहीं matter करता. For example, अली, सारा और साद में से 2 people are to be selected for maybe comparing. तो अब सारा और साद अगर सेलेक्ट हुए हैं तो ऑर्डर तो नहीं मैटर करता. हम ये तो नहीं कहेंगे साद और सारा भी सिलेक्ट हो सकते हैं या सारा और साद भी सिलेक्ट हो सकते हैं. सो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता. ये एक ही कॉम्बिनेशन है, सारा साद और साद सारा. ओके, सो नाउ द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी NCR, which is n factorial over r factorial into n minus r factorial. फॉर्मूला शीट में गिवन होता है और आपको कोई खास यूज नहीं करना पड़ता बिकॉज यू जस्ट डू NCR इन द कैलकुलेटर. यस, हाँ, एक काउंट करते हैं बिल्कुल, इसीलिए कॉम्बिनेशन का आंसर छोटा आता है परम्यूटेशन से. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग का मतलब जैसे किसी टीम के लिए सिलेक्ट हो रहा है. तो दिस इज योर हिंट कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है. परम्यूटेशन के क्वेश्चन में अरेंजिंग लिखा आता है, ठीक है, इसमें सिलेक्टिंग लिखा आता है. सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टिंग 2 letters आउट ऑफ 3. तो क्या होगा 3C2. जब सिलेक्टिंग का वर्ड आता है ना तो दैट मीन्स ये, या चूजिंग का वर्ड आता है तो वो कॉम्बिनेशन हो, ठीक है. और अगर अरेंजिंग लिखा आता है तो वो फिर परम्यूटेशन. 3C2 is 3. कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है. P में P के साथ ही है की. ओके, number of ways of selecting 3 team members from a group of 8. क्या होगा ये? हाँ, 8C3. अच्छा, अगर ये 1 मार्क का आता है तो 8C3 के कोई मार्क्स नहीं होते. आपने 8C3 लिख के इज इक्वल्स टू 56 जरूर लिखना होता है, ठीक है. कॉम्बिनेशन पे नहीं छोड़ना होता, एक्चुअल वैल्यू बतानी होती है. अच्छा, so now we're going to discuss different examples of combinations जो कि questions में आती हैं. There are 5 boys and 4 girls that sit in a row. Find the number of arrangements. Arrangements क्या है? Permutations. मतलब कि अब order matter करेगा, कौन पहले बैठा हुआ है, कौन बाद में बैठा हुआ है. If there are no restrictions, कोई restriction नहीं है, बॉय आ सकता है, गर्ल आ सकता है, तो इसकी क्या होनी चाहिए परम्यूटेशंस या अरेंजमेंट्स?
हाँ 9 फैक्टोरियल, वही बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल, पहले 9, अगले में 8 7 6 5 सो ऑन, तो 9 फैक्टोरियल। ठीक है, सो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो 9 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, विच इज 3 6 2 8 8 0। फर्स्ट सीट इज फॉर हेड बॉय, लास्ट सीट इज फॉर हेड गर्ल। अब ऑब्वियसली इससे अरेंजमेंट्स कम हो जाएंगी क्योंकि फर्स्ट और लास्ट सीट फिक्स हो गई है। ठीक है, हाँ बिल्कुल 7 फैक्टोरियल, फर्स्ट सीट फिक्स हो गई, लास्ट सीट भी फिक्स हो गई, मिडिल की जो 7 सीट्स हैं उस पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस पे हम इसको कह सकते हैं 1p1, इस पे हेड बॉय ही आ सकता है, 1p1 ना भी लिखो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, इसमें खाली हेड गर्ल ही आ सकती है, सो 1p1। मिडिल में 7 लोग अरेंज होंगे और वो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, सो द आंसर विल बी 7 फैक्टोरियल। 5040। हाँ जी, 7 फैक्टोरियल भी लिखोगे और 5040 भी लिखोगे, दोनों लिखोगे। ओके, ओके। बॉय ऑन फर्स्ट चेयर, कोई भी बॉय, लेकिन किसी बॉय नहीं बैठना है फर्स्ट चेयर पे, और गर्ल ऑन लास्ट चेयर। अब फर्स्ट पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आई है, 2 3 4 5 6 7, और लास्ट पे रिस्ट्रिक्शन आई है, ये बॉय ही हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कितने लोग आ सकते हैं इस चेयर पे 5, क्योंकि 5 बॉयज थे, तो द 5p1 लिख लो या खाली 5 लिख लो, 5 में से कोई एक आएगा। ठीक है, लास्ट वाले में हाँ 4, हाँ 4p1 या खाली 4 लिख लो या 4p1 लिख लो। ठीक है, अच्छा बीच में 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। वालेकुम अस्सलाम। 5 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 4। वन 1000800। ओके, फर्स्ट 2 आर बॉयज, लास्ट 2 आर गर्ल्स। सो इन दोनों पे रिस्ट्रिक्शन है। फिर 5p1, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चलो ठीक है, 5p1 और 4p1 ये भी कर सकते हो। ठीक है, या एक और काम भी कर सकते हो, इन दोनों में कितनी अवेलेबल ऑप्शंस है, इन दोनों में 5। ठीक है, तो 5p2 भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। ये भी कर सकते हो कि इन दोनों में 5 में से कोई 2 आएंगे। ठीक है, सेम आंसर आएगा, या 5 इंटू 4 भी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल एक ही बात है।
अच्छा, इन दोनों में 4 गर्ल्स थी टोटल, इनमें कोई 2 आ सकती हैं, तो क्या लिखेंगे? 4p2। दो शुरू में आ गई, दो एंड में आ गई, बीच में कितने रह गए? 5। तो क्या आएगा बीच में? 5 फैक्टोरियल। सो या जो आप कह रहे थे इधर फिर 4p1 और आगे फिर 3p1 लिखेंगे, उससे भी हो जाएगा। Okay. Okay. क्या प्लीज जो भी देख रहे अपने फोन पे आवाज ऐसा ले लो। Yes, please. Okay. बित्ता बोल दिया तो नाम भी बोल देती, that would have been convenient. मुझे Okay. First 5 are boys and last 4 are girls. इसमें क्या करेंगे? First 5 are boys. हाँ, 5p5 times 4p4 या 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 में से 5 बॉयज इधर और 4 में से 4 गर्ल्स इधर, और जस्ट 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यू गेट द सेम थिंग। 5 factorial into 4, sorry, this was 4p4, 4 factorial, which gives 2880. Okay, next. Boys and girls sit alternately. इसमें क्या होगा? So we have अपने अपने आंसर निकालो, फिर कंपेयर कर। 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल सेम होगा। सेम होगा। हाँ, बताती हूँ। अच्छा, ये समझो, ये ग्रीन पे बॉयज आ सकते हैं और यहाँ पे गर्ल्स आ सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम खाली बॉयज को देखें तो कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है? उनके पास 5 चेयर्स ही अवेलेबल है, तो 5 फैक्टोरियल। और गर्ल्स के पास कितनी चेयर्स अवेलेबल है? 4 फैक्टोरियल। तो ये भी वही है, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और अगर इस तरह करने हैं बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल से, तो देखो यही चीज बनेगी। यहाँ बॉय 5 बॉयज बैठ सकते हैं, 4 3 2 1, 5 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, और गर्ल्स में क्या है? यहाँ 4 गर्ल्स बैठ सकती हैं, यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, सेम आंसर बनता है। 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, जो क्या आया था? 2880। बॉयज आर टुगेदर एंड गर्ल्स आर टुगेदर, ये क्या है? इसका क्या मतलब है? पहले 5 बॉयज आगे 4 गर्ल्स या पहले 4 गर्ल्स। एग्जैक्टली, पहले 5 बॉयज और आखिरी 4 गर्ल्स, जो कि हम पहले कर चुके हैं। या फिर फ्लिप, पहली 4 गर्ल्स और लास्ट 5 बॉयज, दैट विल वर्क एज। सो हाँ, सेम बट इनटू 2 कर देंगे। जो पिछला आंसर था उसको अब इनटू 2 भी करेंगे। सो फर्स्ट 5 आर बॉयज एंड देन लास्ट 4 आर गर्ल्स, और 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, या इंटू 2 कर दो। ठीक है, एक ही बात है। सो
5760 लिखा हुआ है, चेक कर दे तो 5 factorial into 4 factorial into 2, yes 5760. अच्छा, अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखने लगे हम। ऑल बॉयज आर टुगेदर, या बॉयज आर टुगेदर लिखा होगा, यूजली बॉयज आर टुगेदर लिखा होता है, इसका मतलब है सारे बॉयज ने इकट्ठा ही बैठना है। इसका क्या मतलब है? खाली बॉयज के लिए, गर्ल्स किधर होंगी? सारे बॉयज ने इकट्ठा ही बैठना है। नहीं, ये तो नहीं कहा सारी गर्ल्स ने भी इकट्ठा बैठना, मतलब कि फर्स्ट गर्ल हो सकती है, फिर 5 बॉयज और फिर बाकी गर्ल्स भी हो सकती है, या फर्स्ट 2 गर्ल्स बाकी सारे बॉयज फिर लास्ट 2 गर्ल्स। तो इस तरह से कितनी कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब इन्होंने क्या किया है, ग्रुप कर दिया है बॉयज को। इसका एक ही तरीका होता है सॉल्व करने का, बहुत इजी होता है, हर ग्रुपिंग के क्वेश्चन में हम यही काम करेंगे। तो ये टॉपिक चेंज हुआ है, अब ग्रुपिंग हो गई है, ठीक है। बॉयज ने साथ ही बैठना है। पहले हम खाली बॉयज को देखेंगे, तो अगर ये 5 बॉयज हैं, 3 4 5 जिन्होंने साथ ही बैठना है, इनकी क्या कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है? 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये एक ही पर्सन है, इसको एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब ये एक हो गया, पीछे इसके अलावा कितने लोग रह गए? हाँ, 4 रह गए, तो 1 2 3 4। अब इन 1 2 3 4 5 लोग हैं, ठीक है। अब ये टोटल 5 लोग हैं, इनकी कितनी अरेंजमेंट्स हैं? 5 फैक्टोरियल, 5 लोग हैं, 5 अरेंजमेंट्स हो गई, तो इनकी हो गई 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स, और इसकी अपनी कितनी अरेंजमेंट्स थी? 5 फैक्टोरियल। तो आंसर हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ग्रुपिंग में ये करते हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ। पहले क्या किया, जिसको ग्रुप करना है खाली उसकी अरेंजमेंट्स लिखी, हमने देख लिया 5 बॉयज हैं, 5 चेयर्स हैं, 5 फैक्टोरियल। अगले स्टेप में अज्यूम कर लेना है कि दिस इज 1 पर्सन, या 5 लोग नहीं है, ये एक ही पर्सन, ठीक है। अब ये टोटल 5 लोग रह गए, उनकी भी 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट है, तो आंसर आ जाता है फिर 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये भी तो एक है ना, ये अब एक बंदा बने, तो 5 है, ठीक है। इन सबको अरेंज करना है, तो 5 फैक्टोरियल, ठीक है। सो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। 5p5 इंटू 5p5 भी हो सकता है, which is 14400. ओके, ये सारा मेथड लिखा हुआ है, जो भी अभी हम कर रहे हैं ना वो सारा इधर एक्सप्लेन हुआ हुआ है। सो अगर कुछ मिस हो रहा है, कुछ नहीं लिख पा रहे, तो इधर से देख लेना। ओके, 4A ड्राइव में किधर थे? अच्छा, अब हम करेंगे गर्ल्स आर टुगेदर। अच्छा, ये खुद ट्राई करते हो, खुद से ट्राई करो, उसको ग्रुप करो और फिर अगले स्टेप में ग्रुप को एक स्टूडेंट कंसिडर करो। सही है। चलो, गर्ल्स आर टुगेदर, गर्ल्स को टुगेदर करेंगे तो 4 फैक्टोरियल बन जाएगा, और उसका एक ग्रुप बना लेते हैं। ये गर्ल्स का ग्रुप बन गया जो कि है 4 फैक्टोरियल। उसके अलावा वी हैव 5 मोर पीपल, सो कंबाइन दिस इज नाउ 6 फैक्टोरियल। तो द आंसर विल बी 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल।
4 factorial into 6 factorial would be 17280. ठीक है, next. Okay. 3 particular students are together. नहीं, 3 particular, कोई खास 3 लोग हैं जिन्होंने इकट्ठे ही रहना है. उनमें से कोई खास हाँ, इसका ग्रुप बनाओ. अच्छा, खुद सोचो, मैंने नहीं डिस्कस कर, 2 मिनट में डिस्कस कर मेरे ख्याल से. थ्री पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर टुगेदर. पहले तो उनका ग्रुप बनाओ और वो कितने फैक्टोरियल होगा. जैसे 3 पर्टिकुलर का मतलब है सारा, साद और अली ने साथ ही बैठना है. उनकी क्या ग्रुपिंग होगी? हाँ, 3 फैक्टोरियल होगी. ठीक, 9 नहीं, 9p3 से नहीं लिख सकते क्योंकि 9p3 का मतलब है 9 में से कोई भी 3. ये तो नहीं है. 3 पर्टिकुलर, इन तीनों ने ही होना है. 9p3 में तो आप किसी और को भी उसमें डाल दो, ये नहीं है. ठीक है, अगर होता ना एनी 3 स्टूडेंट्स आर सिटिंग टुगेदर, फिर हम 9p3 पे सोचते. दिस इज नॉट दैट पॉसिबल. तो ग्रुप में क्या होगा? पर्टिकुलर स्टूडेंट्स नो मिस करना. हाँ, लेकिन वो 3 उनके समझो नाम बताए हुए हैं, अली, साद और हमजा, इन्होंने ही इकट्ठा बैठना है. तो फिर इनकी तो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स होंगी. ठीक है, सो इस ग्रुप की अरेंजमेंट हाँ अभी आएगी, अगली उसी की एग्जाम्पल होगी, उसकी एग्जाम्पल आ रही है बस. ठीक है, तो इस ग्रुप में क्योंकि पर्टिकुलर का वर्ड था तो ये फिर फिक्स्ड है 3 फैक्टोरियल. और अब ये एक ग्रुप बन गया और बाकी कितने स्टूडेंट्स रह गए इसके अलावा? 6, क्योंकि टोटल 9 है ना. तो 1 2 3 4 5 6 और ये कंबाइन कितने हो गए? 7. तो अब ये 7 फैक्टोरियल है. तो आंसर हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल. All 5 boys are not together. पहले मुझे इसका मतलब समझना. All 5 boys are not together. लड़के के बीच में लड़की है. मतलब कि अच्छा हाँ, पांचों इकट्ठे नहीं हो सकते. 2 इकट्ठे बैठ सकते हैं, 3 इकट्ठे बैठ सकते हैं, पांचों इकट्ठे नहीं बैठ सकते. ठीक है, इस केस में क्या करते हैं? टोटल माइनस पांचों को इकट्ठा कर दो, ये हो जाएगा. ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी में नहीं करते, 1 माइनस जो नहीं होना होता उसकी प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं. नहीं, मैं भी बताती हूँ. पहले हम 5 बॉयज को हाँ 9 फैक्टोरियल माइनस 5 बॉयज आर टुगेदर, ये करेंगे. ठीक है, सो इसमें क्या करते हैं? टोटल कॉम्बिनेशंस, सॉरी कॉम्बिनेशन गलत बोल दिया, टोटल परम्यूटेशंस या टोटल अरेंजमेंट्स. टोटल परम्यूटेशंस या ऑल परम्यूटेशंस माइनस all 5 boys are together. हाँ, टोटल भी हम कर चुके हैं 9 फैक्टोरियल, या फिर 9 फैक्टोरियल के अलावा और क्या कह सकते हैं? 9p9. ठीक है, सेम थिंग. माइनस 5 बॉयज आर टुगेदर में पहले 5 का एक ग्रुप बनाया, वो हो गया 5 फैक्टोरियल. और अब ये 1 पर्सन बन गया और 4 और हैं, तो टोटल अनदर 5. नहीं 6 नहीं था, 5 into 5 था. ठीक है, इसकी वर्किंग हुई है पीछे. अब ये फाइंड कर लेते हैं. कहाँ है? ऑल 5 बॉयज आर नॉट टुगेदर. इकट्ठे 5 बॉयज इकट्ठे नहीं बैठ सकते. तो हम क्या करेंगे? 5 बॉयज को इकट्ठा करके टोटल परम्यूटेशन से माइनस करते हैं. ठीक है, टोटल परम्यूटेशन हमने सबसे पहला पार्ट ए था, वो था 9 फैक्टोरियल. 9 पहले में 9 आ सकते हैं, फिर 8 आ सकते हैं, ब्ला ब्ला 1 तक, माइनस
5 बॉयज आर टुगेदर भी अभी सीखा है, पहले खाली 5 को इकट्ठा कर लेते हैं, वो हो जाता है 5 फैक्टोरियल, फिर वो 1 पर्सन बन जाता है, और उसके साथ 3 गर्ल्स हैं, तो वो टोटल 5 पीपल हो गए। फिर सॉरी 4 गर्ल्स हैं और 5th वो बॉय है, ठीक है, तो फिर एक और 5 फैक्टोरियल है। तो 5 फैक्टोरियल ये जो बॉय की ग्रुपिंग हुई है, और फिर ग्रुप होके उसके बाद फिर ये 5 लोग और रह गए 5। Okay, so 9 factorial minus 5 factorial into 5 factorial. ये आ रहा है 348480. Okay. चलो अब ये खुद करो. All 4 348480. Okay, अब ये खुद करो. All 4 girls are not together. चारों इकट्ठी नहीं बैठ सकती. 3 बैठ सकती हैं, 2 बैठ सकती हैं, पर चारों नहीं बैठ सकती. Total minus all 4 girls are together. टोटल हो गया 9 फैक्टोरियल माइनस 4 गर्ल्स का एक ग्रुप बन गया 4 फैक्टोरियल, एक वो हो गया और 5 बॉयज थे. हाँ, तो ये टोटल 6 हो गए, 6 फैक्टोरियल. ठीक है, सो 9 फैक्टोरियल. क्लास प्लीज ये नहीं करना कि इधर वर्किंग छोड़ दी. आपने फाइनल आंसर लिखना है 345600. अच्छा, इसका क्या मतलब है? बॉयज आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. हाँ, और कोई भी 2 बॉयज इकट्ठे नहीं हो सकते. ठीक है, सो वो ये केस भी हम पहले कर चुके हैं. बॉय फिर दूसरा बॉय इसके साथ नहीं बैठ सकता. ये हो गया, तो इसका मतलब है डेफिनेटली बीच में गर्ल्स हैं. ये केस हो गया. ठीक है, तो अब इसकी क्या अरेंजमेंट्स है ग्रीन वाले पार्ट की? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, मतलब 5 फैक्टोरियल, और गर्ल्स की 4 फैक्टोरियल. ठीक है, केस हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब इसकी वर्डिंग्स चेंज हुई हैं. 5 फैक्टोरियल फॉर बॉयज, 4 अवेलेबल सीट्स फॉर 5 अवेलेबल सीट्स फॉर 5 बॉयज, या 5 पे 5 लिखो या 5 फैक्टोरियल लिखो, और 4 अवेलेबल सीट्स फॉर 4 गर्ल्स. सो 4 फैक्टोरियल ये आता है 2880. अच्छा, अब ये गर्ल्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. सेम नहीं है. गर्ल्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. पहले ना गर्ल्स कर लेते हैं. गर्ल 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 एंड गर्ल. ठीक है, इनकी क्या अरेंजमेंट्स है? 4 फैक्टोरियल. ठीक है, अब 5 बॉयज हैं, गर्ल्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. अच्छा, मैंने गलत किया, पहले बॉयज लिखेंगे. 1 2 3 4 5, ये बॉयज हैं इधर. इनकी क्या अरेंजमेंट्स हैं?
5 फैक्टोरियल। अब क्योंकि गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठ सकती तो वो या यहाँ होंगी या यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ भी। ये कितनी ऑप्शंस अवेलेबल है उनके पास, कितने स्लॉट्स अवेलेबल? 6। और गर्ल्स कितनी है? 4। तो इनटू इस केस में 6p4 होगा। इधर ज्यादा अरेंजमेंट्स हैं, अदर दूसरे पार्ट को दोबारा कंपेयर करते हैं इससे, ठीक है। इसमें क्योंकि गर्ल्स कम है लेकिन उनके पास जगह ज्यादा है तो यहाँ भी हो सकती हैं, यहाँ भी, तो 6 जगह है उनके पास, तो हम करेंगे 6p4। तो 5 फैक्टोरियल इनटू, इसको जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना तो मैं अब आगे जब भी पढ़ाऊंगी मैं यहाँ एरोज बनाऊंगी, हाँ। लेकिन जब ऑब्वियसली यहाँ गर्ल होगी तो आखिर में नहीं होगी, या आखिर में होगी तो यहाँ नहीं होगी, लेकिन पॉसिबिलिटीज तो है, ठीक है। सो इनटू 6 अवेलेबल स्लॉट्स फॉर 4 गर्ल्स, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स कम है तो उनके पास अवेलेबल स्लॉट्स ज्यादा है। 5 फैक्टोरियल, हाँ वो बॉयज का, पहले बॉयज फिक्स कर लिया और उनके अराउंड गर्ल्स फिक्स करनी है। जब बॉयज फिक्स हो गए तो हमने देखा ज्यादा स्लॉट्स अवेलेबल है, गर्ल्स 4 है लेकिन 6 स्लॉट्स अवेलेबल है, तो 6 में से 4 स्लॉट्स वो ले लेंगे। सो 5 फैक्टोरियल इंटू 6p4, फाइव फैक्टोरियल इंटू 6p4 फैक्टोरियल ही होता है। 5p5 बिल्कुल 5 फैक्टोरियल ही होता है। ओके, ये हो गया। अगर हम बॉयज आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर को भी इसी स्टाइल में करें तो हाँ, पहले हम 4 गर्ल्स को अरेंज कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया 4 फैक्टोरियल। अब बॉयज या इधर 1 2 3 4 5 स्लॉट्स अवेलेबल है उनके पास, और बॉयज थे ही 5, तो इंटू 5p5 या इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, अच्छा इधर एंड करते हैं लेसन। जो कल ये